اب اتنے برس ہو گئے تھے، کبیرہ پاکستان واپس آ گئیں، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی، اور ہمائی تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا، پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے، ایسے ہی پہلے زمانہ میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا۔ پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز۔ پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ چمک گیا۔ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیو، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے پہ ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اوف، یہ سوال! کیا تھا اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا؟ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا، بس اس تکرار سے تک گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا اسکوپ ہے اس کام کا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ باجی، مالا بی بی کی شادی کر دیں۔ پہلے تو ان کے سر پہ ریستوران سوار ہوتا تھا، شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بخت بی کو اس ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی تھی۔ تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا؟ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی بی۔ مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے۔ اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھیں۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آیا۔ کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا ہے، اس لیے جب فارغ ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالا کو ظاہر ہے اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں بات بھی کر رہے تھے۔ خیر اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے۔ سلیم نے متاثر ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پہ پھیری۔ کیف نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پہ دیکھ لینا۔ فراغ دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی۔ ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا سوال کیا۔ معید بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ۔ وہ بیمار تھیں، محتاج تھیں، بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی۔ میری امی کے ہاتھوں میں ہی وہ فوت ہوئیں۔ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا ہوتی ہیں۔ سلیم کینیڈا کو کینیڈا کہتا تھا۔ اچھا، مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ سب سے بڑی ہے نا؟ ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی، وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔
سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئی۔ وہ سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یا شاید کچھ اور تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام، ریستوران، گھر، لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی، بس کمرے میں پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ اس سے گویا یہاں لا کے بھول ہی گئی تھی۔ ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے ملحقہ بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں کھلتا تھا، اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف، تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچن میں آئے اور اپنا ناشتہ چائے وغیرہ بنا کے وہیں سے رخصت ہو جائے۔ ماں کو مرد ملازموں کا گھر کے اندر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی۔ وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پہ کھانے اور میٹھے بنایا کرتی تھی۔ ماں ہی کہتی تھی ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے۔ بخت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے باہر سے تھیں تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا تھا، جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر پہ اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی کھٹ پٹ پہ کھلی۔ اسے معلوم تھا یہ ماں ہوگی۔ ماں فجر خوب شور کے ساتھ پڑا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو کہ وہ دوبارہ سو ہی نہ سکیں۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھی، لیکن لاہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس۔ وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اور اب سے کوئی مرد اسے زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ اندھیر لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے دو زانوں بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح؟ اسے نہیں یاد اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہو۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا، عجیب بات تھی۔ صبح وقت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائیں تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائیں تو بابو آگے سے بولا میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میں کر دو۔ اس کی نقل کر کے بولی، پھر خود ہی کچن سے معید بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لایا اور سیٹ کر دیا۔ بازار سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ ہی مجھے پکڑا دی کہ میری بیوی یہی پیتی ہیں۔ وہ ہنس دی۔ مبین منزل کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا۔ بخت بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پہ رکھیو، مجھے یہ وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا بخت بھی، اب جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے، اس نے مجھے سیلون لے کر جانا ہے۔ شام میزا کے نکاح کا فنکشن تھا اور سد شکر اس کے چہرے پہ ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشل کروا لے تو شام تک اس کا اثر آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کرسی پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پہ کچھ کر رہا تھا۔
उसे देख के खड़ा हो गया, स्केचबुक पीछे कर ली। आज जीन्स पे सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी, पैरों में जॉगर्स थे और चेहरे की हल्की बड़ी शेव वैसी ही थी। क्या कर रहे हो? उसकी स्केचबुक को देखते हुए करीब चली आई। परस कोहनी पे टांगे, बाल कैचर में बांधे, वो आंखों पे स्याह चश्मा लगाए हुए थी। कैफ के चेहरे पे छिम जाने का तासुर उभरा। रुखसार हल्के से गुलाबी हुए, या शायद धूप के बायस उसे ऐसा लगा था। यूं ही फारग वक़्त में स्केचेस बनाता हूँ। क्या बना रहे हो? दिखाओ। वो दोस्ताना लहजे में कहती उसके ऐन सामने आके खड़ी हुई। अब वो दोनों धूप में थे, छाँव पीछे रह गई थी। कैफ ने स्केचबुक खोल के उसके सामने की, सफ़े पलटाए। उस पे मोटर बाइक का स्याह सफ़ेद स्केच बना था। तुम्हें मोटर बाइक्स पसंद हैं? बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा सा शर्मिंदा नज़र आ रहा था। माला ने गौर से स्केच को देखा। ये हैवी बाइक है, काफ़ी महंगी होती है। अगर तुम अपना नया बिजनेस इसके लिए शुरू करना चाहते हो कि एक दिन तुम ये बाइक खरीद सको, तो ये एक गलत अप्रोच है। नरमी से तंबीह की। उसे समझ में आ गया था कि वो नौजवान कर्जों का शिकार क्यों था। महंगी बाइक्स का शौक, महंगा लैपटॉप, कीमती फोटोग्राफी आलात इंपोर्ट करवाना। वो अपनी बिसात से ऊंची जस्त लगाना चाहता था और ऐसे में ज़मीन उसके कदमों तले से निकल जाती थी। कैफ ने जवाब नहीं दिया, कार की तरफ बढ़ गया, जैसे वो उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था जब सफूरा की कॉल आने लगी। कैफ कैसा काम कर रहा है? तुम उससे मुतमईन हो ना? माला का फ़ोन कार से कनेक्टेड था। आवाज़ खुद ब खुद स्पीकर्स पे गूंजने लगी। हाँ, कैफ अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी स्मार्ट और समझदार है। साथ ही अपने नए बिजनेस प्लान को भी वक्त देता है। वो सादगी से कहते हुए बाहर देख रही थी। वो उन लोगों में से नहीं थी जो किसी को उसके सामने नहीं सराहते थे कि वो सर न चढ़ जाए। जो सच हो वो कह देना चाहिए। स्मार्ट होता तो अब तक कामयाब हो चुका होता। उसके लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास ही जॉब करता रहे, वरना उसका अपना काम कभी कामयाब नहीं होना। और हाँ, बस ये ध्यान करना कि वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे वैसे ना ले। थोड़ा सा लालची भी है। मेरा कज़न है ना, मुझे उसका पता है। सफूरा इतना तेज तेज बोले जा रही थी कि उसे स्पीकर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। बेख्तियार कैफ के कंधे की पुश्त को देखा। वो खामोशी से ड्राइव करता रहा। है कहाँ वो? ज़रा बात करवाओ मेरी। सफूरा अपने तय एक अच्छी दोस्त होने का सबूत दे रही थी। कैफ ने एक हाथ हिला के नफ़ी का इशारा कर दिया। कहा कुछ नहीं। चूंकि बैक व्यू मिरर ऊपर की तरफ था, वो उसके चेहरा नहीं देख सकती थी। अभी वो मसरूफ़ है, तुम बाद में उसे खुद ही कॉल कर लेना। कॉल बंद होने के बाद भी कार में एक अजीब सी टेंशन फैल गई। उसको मालूम नहीं था कि तुम सुन रहे हो। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। कैफ जमाल एक लूज़र है और लूज़र रहेगा। उसका लहजा स्पार्ट था। जॉन मैक्सवेल कहता था, तुम पैसे से नहीं जीत सकते, उसको कमाने पे फोकस करो तो मादियत परस्त कहलाओगे। कमाना चाहो और ना कमा सको तो लूज़र हो। बहुत कमा के खर्च ना करो तो कंजूस हो। अगर कमा के खर्च करते रहो तो फजूल खर्च हो। अगर कमाने की फ़िक्र ना करो तो तुम अनएम्बिशियस हो। अगर बुढ़ापे तक बहुत से पैसे के मालिक हो तो तुम बेवकूफ़ हो कि उस पैसे को कब्र में ले जाना चाह रहे थे। फिर क्या करना चाहिए पैसे के साथ? पैसे से जीतने का बस एक ही तरीका है बॉस। उसको मुट्ठी में नहीं दबा लेना, बल्कि ढीली गिरफ्त के साथ उसको पकड़ना है और फिर खुले दिल से उसको काबिल कदर चीज़ों को हासिल करने पे सर्व करना है। ज़रा तौक़ुफ़ से बोला, आपसे एक दरख्वास्त है। दोबारा इनकी कॉल आए तो मुझसे बात मत करवाइएगा। उनका मेरे ऊपर एहसान है। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने उनको कुछ ऐसा बोल दूं जिस पे मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सारी बात ही ख़त्म हो गई थी।
काश वो स्पीकर ऑफ रखती। सैलून एक कमर्शियल ब्लॉक की 2 मंजिलों पे फैला था। तीसरी और चौथी मंजिल पे कोई जिम था। वो उतरने लगी तो उसने पूछा कि क्या वो उसे अंदर दरवाजे तक छोड़ने आए, मगर कशमाला ने मना कर दिया। सैलून उसकी कज़न का था। यूं उस नौजवान को साथ देख के बातें बनती। उसे वहां 2 घंटे लग गए। जब वो वापसी पे लिफ्ट में सवार हुई तो अंदर कोई और भी था, एक हट्टा कट्टा सा आदमी जो उसकी तरफ पहलू किए खड़ा था। वो नज़रअंदाज करके अंदर आई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जो कुछ हुआ एक लम्हे में हुआ। किसी ने उस पे पीछे से हमला किया। वो ऊंधे मुंह नीचे गिरे। सर के पिछले हिस्से में दर्द की शदीद लहर उठी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बॉस बॉस, कशमाला ने आंखें खोली। बसारत के आगे अब भी धुंध थी। उसने पलकें झपकाई। वो लिफ्ट के फर्श पे चेहरे के बल गिरी हुई थी। उसके सामने वो पंजों के बल बैठा उसे पुकार रहा था। वो हथेली के बल उठी, फिर चौंक के इधर उधर देखा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो ग्राउंड फ्लोर था। बावर्दी गार्ड बाहर की तरफ खड़ा था और कैफ उसके सामने बैठा था। आप ठीक हैं? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। उसका हाथ बेख्तियार सर के पिछले हिस्से की तरफ गया। दर्द की टीस अभी तक उठ रही थी। क्या हुआ मुझे? उसने उलझन से इधर उधर देखा। लिफ्ट नीचे आई तो आप अंदर बेहोश थीं। गार्ड को मालूम था कि आप किस कार से निकली थी, इसलिए वो मुझे बुला लाया। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो। वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उठने लगी। मगर हुआ क्या था? वो तशवीश से उसे देख रहा था। चलो ना। इससे पहले कि लोग जमा होते वो उठ खड़ी हुई। सर घूम रहा था, लेकिन वो बज़ाहिर खुद को संभाले उठने लगी। पर्स मुझे दें। उसने नरमी से उसके हाथ से पर्स ले लिया। फिर वो गार्ड के सामने रुका, बटुए से 500 का नोट निकाल के उसे थमाया, उसका शुक्रिया अदा किया और कशमाला के पीछे चल दिया। किसी ने गार्ड को रोक के पूछा कि क्या हुआ था। वो एक बाजी सैलून आई थी, उनकी शायद तबीयत खराब हो गई थी। मैं उनके शोहर को पार्किंग से बुला लाया। वो किस्सा बयान कर रहा था। सीधे घर चलो। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। सीट के पुश से उसे टिका दिया और आंखें बंद कर ली। पहले मुझे बताएं हुआ क्या था। वो कहते कहते चौंका। किसी ने कुछ किया है। मैं भी देखता हूँ। कैफ ने तेजी से सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगा जब माला ने रोका। वापस बैठो कैफ। अंदाज में तहकम भी था और तकाम भी। ये मेरी कज़न का सैलून है, यहाँ तमाशा नहीं बनाना। ख़ानदान में बातें बनती हैं। मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है। वो उसकी तरफ रुख मोड़ के बैठा और संजीदगी से पूछा। माथे पे बल थे, आंखों में गुस्सा भी था। उसे जो याद था बता दिया। मैंने उसका चेहरा देखा था, मगर मैं उसको नहीं जानती, और लिफ्ट में सीसीटीवी भी नहीं था। लिफ्ट के बाहर तो होगा, मुझे देखने तो दें। मेरा क्या फ़ायदा आपको अगर मैं ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। उसे गुस्सा आ रहा था। ये तय था कि वो ना पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएगी ना शोर डालेगी। मैंने कहा ना, यहाँ तमाशा नहीं बनाना, घर चलो। वो थकान से बोली। सर में शदीद दर्द हो रहा था। उस आदमी ने उसे बहुत ज़ोर से मारा था। ठीक है, मगर मैं वापस आऊँगा और आपका नाम लिए बगैर उनके रिकॉर्ड ज़रूर निकलवाऊँगा। ऐसे कैसे आप पे हमला कर सकता है। वो ड्राइव करते हुए बरहमी से कह रहा था। उसने पहली दफ़ा कैफ को गुस्से में देखा था, जैसे वो मेरे घर में खून फेंकवाता है, ऐसे ही वो मुझ पे हमला भी कर सकता है। उसने अपना चेहरा नहीं ढांपा हुआ था, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो आपका ताक़ुबकार था। कोई किराए का आदमी होगा, मगर उसने ऐसा क्यों किया। वो सोचते हुए कह रहा था।
1 मिनट अपना पर्स चेक करें, कुछ मिसिंग तो नहीं है। उसका जहन अभी तक शल था। वो जो इतने अरसे से सिर्फ एक वहम लगता था, वो आज हकीकत बन के सामने आ गया था। ऐसे में उसे पर्स का ख्याल ही नहीं आया था। उसने पर्स खोला और अंदर से एक एक चीज़ निकाल के देखने लगी। मोबाइल, बैंक कार्ड्स, कैश सब वैसे ही था। अलबत्ता एक चीज़ वहाँ ऐसी भी थी जो उसकी नहीं थी। उसने मेरे बैग में कुछ रखा है, वो ताज्जुब से बोली तो कैफ ने बैक व्यू मिरर का रुख ठीक किया और उसके अक्स में माला को देखा। वो एक सिल्वर रंग का लाइटर उलट पलट के देख रही थी। कोई मेरे बैग में सिगरेट लाइटर क्यों रखेगा? मुझे दिखाएं, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो लाइटर की निचली साइड को ऊपर उठाए कुछ देख रही थी। वो मुझे अपना नाम बताना चाहता है। वो तलही से मुस्कुराई। लाइटर पे उसका नाम लिखा है। वाकई? कैफ को हैरत हुई। मोड़ काटते हुए पूछा, क्या लिखा है? कशमाला ने लाइटर पे लिखे 2 अल्फाज पढ़े, माहिर फरीद। उसने एक झटके से ब्रेक लगाई। कार के टायर चिरचिराए। आराम से कैफ। लेकिन वो तेजी से पीछे घूमा और लाइटर उसके हाथ से ले लिया। फिर उसे ऊंचा उठाकर देखा। उस पे वाकई अंग्रेजी में लेजर इनग्रेविंग से माहिर फरीद लिखा था। कैफ का खलक खुश्क होने लगा। नामुमकिन। बिलाखिर मुझे मेरे ताकुबकार का नाम मालूम हो गया है। कैफ ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। सब्ज आंखों में उलझन थी, ना समझी थी। उसने बहुत सा थूक खुश्क गले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सरसरी बनाया। नहीं। कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैंने ये नाम ही पहली दफ़ा सुना है। मैं ये लाइटर रख लूं? उसको चेक करना होगा, अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा। अलबत्ता उसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पोर्च में जब वो कार से निकली तो वो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा था। सफूरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड्स को टिप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे उसमें से दिया था। उसके जाने के बाद कैफ के तासुरात बदले। चेहरे पे बरहमी दर आई। उसने फ़ोन निकाला और वाइट हेयर की चैट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो। ये हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थीं। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। उस शाम मुबीन मंजर में गहमा गहमी का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मईद किसी बाथरूम से चिल्लाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पे बैठी थी। बालों में सुबह ही हेयर डाई लगाया था, सो अब वो सफ़ेद नहीं ग्रे भूरे लग रहे थे। ग्रे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे, पख्त भी उनमें कंघी फेर रही थी। सामने गाँव तकिए पे उनका मोबाइल खड़ा रखा था जिस पे माही नज़र आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी, एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाई। वो पहलुओं पे हाथ रखे तफ्तीशी नज़रों से उन्हें देख रही थी। इयररिंग्स दिखाएं मुझे? कनाडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 1910 वाले कांटे पहन लिए हैं? वो ग्रे स्टड्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपने ज्वेलरी बॉक्स में उसे ढूंढने लगी। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखे। माही को याद आया। उसे माँ की हर चीज़ याद रहती थी। टॉप्स वही थे। माँ ने उन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार के उन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया।
अच्छा बताओ शाल कौन सी लूँ? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहें वाइट वाली शॉल निकाल दे जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की एक कुर्सी पे बैठी मोबाइल पे लगी थी, खोई खोई सी। जब से वो सैलून से आई थी वहीं बैठी थी। माला, बेटे वो वाइट शाल तो निकाल दो, और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है, मैं शॉल निकालती हूँ। वो वहाँ से उठ गई। उसने कमरे में पहले से वहीं सफ़ेद शाल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ उसे तब पहनेगी जब माँ ही कहेगी। माँ को सिर्फ माँ ही की चॉइस पे एतबार था। माँ ही यहाँ होती थी तो फंक्शंस वगैरह पे माँ को खुद तैयार करती। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल पे यही काम करवाती। माँ के कपड़े, हत्ता के माला के भी अक्सर कपड़े माँ ही लिया करती थी। उसको शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी उसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही कि अब छोड़ दो, वो 1500 से कम में नहीं देगा, लेकिन माही भी डटी रही, नहीं, मुझे 800 में देगा, देख लेना। और 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में लेकर ही हटी थी। शाल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फौरन से मुझे भेजनी है आपने। आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में माही, माँ ने टोका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो, शादियां तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। बख्त बीबी माँ के कंधे के पीछे से काल में शामिल हुई। वो कनाडा की काल पे इतना ऊंचा बोलती थीं कि जैसे आवाज़ हवा के दोष पे कनाडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वक्त कहती थी अल्लाह मेरी माही को बच्चा दे, तो बस अपना ख्याल रख। तो वो ठीक है, लेकिन ये बात की नौकरी ना होती तो मैं भी कभी कनाडा ना रहती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माही रोहान सी होके बोली। फिर कुछ याद आया। शादी पे कबीरा ताई भी होंगी ना? माँ के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी। सर झुका के तख्त पे बिखरी अपनी चीजें समेटने लगी। परे करो उसको, हमें क्या। देखना आप, वो शादी पे आएंगी और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए उनके पास जाके खूब हंसे बोलेंगे, देखना। मईद तैयार होके आ गया था और अब सोफे पे बैठ के जूते पहन रहा था। मुंह में बड़बड़ाया। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में गीबतों का वक्त हुआ चाहता है। माँ ही इस बात का करारा सा जवाब देती, लेकिन उसे कुछ नज़र आया था। स्क्रीन पे चेहरा करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लान में कौन है? माही की तेज नजरें माँ के पीछे खिड़की पे जमी थी। माँ ने एक नज़र खिड़की को देखा जहां लान में मोबाइल पे लगा कैफ टहलता नजर आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वही साथ लाई है। माँ ने माला को फोन पकड़ा दिया और खुद घुटनों पे हाथ रख के उठी। उनका रुख कमरे की जानिब था। अभी उन्होंने जूते पहनने थे। मेरा ड्राइवर है और असिस्टेंट भी। माला ने फोन थाम लिया। माही बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। जरा करीब से दिखाओ उसकी शक्ल। माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लाउंज में काम करते हुए आबाद को देख के ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया है कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। आबाद पे असर ना हुआ। लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर बोला, आईना देख लो, खुद भी तुम किसी मर्द से कम नहीं लग रही। माही की हंसी गायब हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं जरा आती हूँ। उसने फोन बंद कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग अजीम छिड़ने वाली थी।